हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 27 जून 2017 और निफ्टी आज खुली है। मार्केट खुला है आज 3 दिन के गैप के बाद। एंड टू मी आई विल कंटिन्यू वेयर आई लेफ्ट ऑन 3 days back. 3 days back when I said, you know, over here I talked about market going down. This was the day. This was 20th of June. Like when market was all time high. I was talking about that I foresee a profit booking coming in. You can refer to my videos. And this was the day जब Nifty almost went horizontal. उसके बाद on 21st it opened gap down, tried to recover a bit. Then 22nd it tried to go up with momentum but could not cross 9715 and then it fell down. From there 9700 से गिर के निफ्टी आज है 9532 पे 35 पे. I'm talking about futures, right? So which is good, about 165 points का इसने आप लोगों को एक डाउनवर्ड ब्रेकआउट दिया है. ठीक है. और आज मॉर्निंग में जब निफ्टी खुली है with such huge volumes of selling volumes and taking this resistance on 200 moving average and on 50 moving average, I was so certain that the today's trend is going to be in the downward direction, and a lot of contribution of this is coming from Bank Nifty. So Bank Nifty is also aggressively down. It's about 200 point down from wherever it was, and it has also taken a resistance. Can you see these volumes, the selling volumes which are adding up, right, and which has brought it down to about 200 point below its last closing. Fine. So look at this candle. Like it does not have any buyer. There is no buyer over here, which kind of confirmed the bearish trend that will set in. Okay. And then of course it has fallen down this much. So let's see अब कितना profit booking आती है और कब आती है. So on Friday when I was listening to the TV and I heard so many of these experts, technical experts talking about Nifty heading towards 9750 or 9700, and they took a poll of about 5 of them, and 3 of them saying Nifty is in a bull run and it's going to go up, and 2 of them were a bit negative. And then I saw Nifty going down. When I made the video, I didn't have much of clue over here, and then it started falling down. So I felt very sad. I said so many people will be trapped today because they believe what people on the TV is talking about, and because they believe so much on what TV is talking about, there will be a good possibility of them to getting trapped into buying whatever these technical analysts are saying. So what I want to urge you urgently कि आप अपनी एनालिसिस खुद करिए. ठीक है. तो आपकी एनालिसिस जब भी होगी उसमें हमेशा it's your money which is involved. You know how hardly you have, with how much hard work you have earned it. So you will never go wrong. So I want to take you to a trade which one of the member has suggested. He's talked about Bharat Forge, right? See Bharat Forge. ये भारत फौज है, right? ये 15 मिनट का ग्राफ है. Can you see taking a resistance? This was the resistance to this graph on 22nd. Then 23rd it is down, and this is 24th. If you ask my heart of heart, if you ask me, I will be only interested in taking trades which are on resistance or which are on support. Only those two trades I want to do. So like if you go down and further see here, this is one hour graph, right? It doesn't show me a resistance, but 30 minutes pe aap dekho, so you will see the resistance over here clearly, right? These moving averages were very close together. On 22nd, 21st they were all together at one place, and 22nd onwards they started divergence, and both 10 moving and 50 moving average crossed 200 moving average, and how after taking resistance the stock has come down, right? I want to show you with respect to how you can really analyze with Bollinger Bands. So I have created a new study which I'm going to tell you what is it exactly. I have taken up the exact default parameters of Bollinger Bands and applied it, which is let me show you here.
which is 20 EMA and standard deviation of 2, and that is what I have taken. And उस पे मैंने 5, 8 और 13 मूविंग एवरेजेस लगा रखी हैं. 5, 8, 13 एंड 21 मूविंग एवरेजेस लगा रखी हैं EMA की, एंड दे आर ऑल फिबोनाची नंबर्स, राइट? फिबोनाची नंबर्स हैं, वो लगा रखे हैं मैंने टू जस्ट फाइंड आउट हाउ दीज कैंडल्स आर मूविंग. नाउ एज आई टोल्ड यू द अदर डे कि जहाँ पे भी ये नैरो पार्ट आता है और जहाँ पे ये जो 20 मूविंग एवरेज है बीच वाली, ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है. यू हैव टू माइंड माई वर्ड्स, हॉरिजॉन्टल हो जाती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और उसके बाद एक बबल बन के मतलब ये प्राइसेस या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे. अगर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो ऊपर वाला पार्ट ऐसे ऊपर की तरफ ब्लोट होना चाहिए, बाहर को निकला हुआ होना चाहिए, मतलब ब्रॉडनिंग हो जानी चाहिए यहाँ पे. तब इसका मतलब कि प्राइस मूवमेंट फास्टर होगी. जब ये ब्रॉडनिंग नहीं होती है तो प्राइस विल गो विद अ स्लो पेस अप और डाउन, राइट? इट फॉर्म अ चैनल काइंड ऑफ अ थिंग. इट वोंट फॉर्म ऑफ बबल जब भी फॉर्मेशन होगा, बबल मतलब एक नैरो पोर्शन के बाद जब भी एक ब्रॉडनिंग होगी, आई विल शो यू हियर. जैसे जब भी नैरो पोर्शन के बाद एक ब्रॉडनिंग हुई, ये ऊपर की तरफ ब्रॉडनिंग हुई, prices started going down rapidly, right? These kind of falls will give you more profit than whenever the trades are going along this. ठीक है, तो हमको कहाँ पे ढूंढना है इस तरह के ब्रेकआउट जहाँ पे कि ये पैरेलल हो जाती है लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ये मूविंग एवरेज, राइट? सो दैट इज वन. एंड कहाँ पे ये ओवरबॉट हो जाती है और ओवरसोल्ड हो जाती है? ओवरबॉट जब ये कैंडल्स बाहर आ जाती हैं, इस बबल के बाहर आ जाती हैं, दैट इज अ पोजीशन वेयर इट इज ओवरबॉट और काइंड ऑफ एन इंडिकेशन दैट वी नीड टू एग्जिट द ट्रेड. ठीक है, अब हम कैसे एग्जिट करेंगे? लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. कि हम वेट करेंगे फर्स्ट दीज कैंडल्स टू गो इनसाइड द बबल. पहले इस कैंडल को बबल के अंदर आने का वेट करेंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे कि MACD एंड RSI क्रॉस ओवर हो, एंड देन वी विल डू either we exit our trade or we sell, whatever we want to do that. But when the candles are outside, this gives you an indication कि स्टॉक जो है ओवर बॉट है. इसी तरह अगर नीचे की तरफ एक कैंडल स्टैंड अलोन कैंडल बनेगी तो उसका मतलब ओवर सोल्ड है ना. ये कैंडल जो बिल्कुल बाहर बनी है ना, उसकी नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स यू विल हैव टू टेक अ कॉल कि आपको क्या करना है. ओके, नाउ लेट मी टेक यू थोड़ा सा अगर हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं. लेट्स से वी गो टू द 1 आवर टाइम फ्रेम. 1 आवर टाइम फ्रेम इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी बिकॉज सी जब भी ये आउटसाइड कैंडल बनी है, राइट, आउटसाइड कैंडल के बाद आप देखोगे जब ये कंस्ट्रक्शन हुआ, राइट, नैरो पार्ट फ्लैट, मिडिल ये जो इसकी मूविंग एवरेज है वो फ्लैट हो गई है. उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, MACD RSI ने सपोर्ट किया, यू कैन बाय इट. ये मैं 1 आवर के ग्राफ की बात कर रही हूँ. तो 1277 पे आप 117 या 80 पे आप इसको बाय कर लीजिए. इट विल टेक यू टू 1205. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे ये रेड कैंडल बनती है. वन इज दैट इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, और उसके बाद जब ये अंदर बंद होती है, ठीक है, हमको वेट करना है RSI और MACD के सपोर्ट का. हम वेट करेंगे जब ये MACD क्रॉस ओवर हो जाएगा, RSI 40 के नीचे चला जाएगा, we can sell this stock, right? So this is how you will use the Bollinger Bands. You have to see for an outside candle, right? A candle which is forming standalone outside. Now just see this beautiful doji. आप देख रहे हो, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन था. रीजन बीइंग कि इसके बाद MACD क्रॉस ओवर हुआ, RSI क्रॉस ओवर हुआ, and the candles have started moving in, right? This was a very beautiful outside candle, outside the bubble, outside the channel. This candle was very beautiful. Now here अगर हम इस जगह देखते हैं, जो भी ये स्टॉक है, I don't care about the name, but see here this line over here is horizontal, right? Broadening हुई bubble की and the stock prices started going down. We can sell it over here 11118 and कहाँ तक ये हमको नीचे लेके आ गया 1037. गुड अबाउट 70-80 पॉइंट्स ये आपको नीचे लेके आ गया है, और एक लॉट है 600 रुपीज़ का, 600 का. सो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी पॉइंट्स यू विल गेन फ्रॉम हियर. ओके, so you can use Bollinger Band combined with RSI and MACD, and you can look for these channels, the constrictions, the narrow parts. You can look for the outside candle,
आउटसाइड कैंडल जहाँ पे आपको बड़े फ्रेम में मिलेगी वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदने की या बेचने की। अगर आप वन डे लेते हैं तो योर अपॉर्चुनिटी विल बी इवन फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसे यहाँ पे देखिए आप, देर विल बी सम फॉल्स सिग्नल्स ऑल्सो। जैसे ये वाली कैंडल बनी है, आउटसाइड कैंडल बनी है, बट RSI एंड MACD हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। RSI MACD ऊपर जा रहा है और RSI 64 पे है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, राइट। वी नीड टू हैव एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ all the parameters being matched, right? जब MACD, RSI and the candle, outside candle gives us the same indication, तब हम इसको खरीदेंगे या बेचेंगे। अब आप ये देखो, बीच वाला जो ये चैनल है फ्लैट है, कंस्ट्रक्शन है, नैरो पार्ट्स है, यहाँ पे स्क्वीज हुआ, स्क्वीज के बाद सडनली देयर इज एन एक्सपेंशन, ये बबल नीचे की तरफ ब्लोट हुआ और कैंडल स्टार्टेड, प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग इन द अपर डायरेक्शन। MACD ने, RSI ने आपको सपोर्ट किया है, so you can go long for this stock. I want to show you Voltas also, because Voltas is something we did. We in our group we did this trade. हमने ये ट्रेड किया था. This is Voltas one day. Let me take you to a little lower time frame. Here, just see how beautiful this trade is. This is a place 468. 468 पे हमको ये नैरो पोर्शन मिला था, स्क्वीज मिला था. उसके बाद ये बबल ऊपर की तरह ब्रॉडन अप हुआ और कैंडल प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग डाउन. ठीक है, दिस इज स्टिल कंटिन्यूइंग, राइट. फिर हमको एक हॉरिजॉन्टल पार्ट मिला जहाँ पे ये बीच वाली जो मूविंग एवरेज है वो फ्लैट हो गई है, फिर से स्क्वीज लगा और फिर से प्राइसेस नीचे चलने लगे, राइट. MACD, RSI दोनों हमको सपोर्ट कर रहे हैं. सो दिस इज आर ट्रेड, दिस वॉज आर ट्रेड, दिस इज वॉट वी डिड. इफ यू वॉन्ट टू यूज Bollinger Bands यू कैन यूज दैट एज वेल. थोड़ा सा टाइम फ्रेम को और इंक्रीज करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता था. जितना आपका टाइम फ्रेम ज़्यादा होगा उतना आपकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी. जैसे आपको मैं दिखाती हूँ, ये एक आउटसाइड कैंडल थी, राइट. ये एक आउटसाइड कैंडल थी. RSI यहाँ पे क्या था, RSI वॉज 77, ओवरबॉट था. वी कुड हैव सोल्ड इट एट दिस पॉइंट. नेक्स्ट, जब कैंडल्स नीचे जाती हैं विद इन दिस, यहाँ पे इस जगह पे वी कुड हैव सोल्ड इट 416 पे हम सेल करते थे और इट वुड हैव गॉन डाउन टू 402, 3 4 5 6 दिन में. ठीक है, सो दिस वॉज वन वे ऑफ ट्रेडिंग, डूइंग आवर ट्रेड, राइट. इसी तरह और देखते हैं कुछ. जैसे यहाँ पे देखो आप, ये आउटसाइड कैंडल बनी है, राइट. MACD, RSI कहाँ पे, इस जगह पे ओवरबॉट रीजन में 77 पे है और MACD ऊपर से नीचे भी जाके क्रॉस हो गई है इस कैंडल के बाद. तो 436 पे इसको सेल कर सकते थे एंड इट वुड हैव टेकन अस टू 405. गुड अबाउट 30 पॉइंट्स वी कुड हैव गॉट हियर. दिस इज वन डे टाइम फ्रेम. लेट्स सी और कहीं हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी. ये एक आउटसाइड कैंडल बनी थी, ठीक है. अब RSI भी इसमें ओवरसोल्ड थी, 88 पे थी. वी कैन डेफिनेटली सेल नेक्स्ट डे व्हेन इट ओपन्स. 360 पे सेल करते थे एंड इट वुड हैव कम डाउन टू 343, राइट. बट दिस वाज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड. लेट्स सी ये वाला ट्रेड. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रेड. ये मुझे, मेरे को अगर आप पूछेंगे तो ये मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर ट्रेड लगता है. क्यों? MACD क्रॉसओवर, RSI इज इन द ओवरसोल्ड रीजन विच इज 35 एंड ये नेक्स्ट डे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, राइट. ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है. नेक्स्ट डे जब ये यहाँ पे आ जाता है 313 पे, वी कुड हैव बॉट इट एंड इट वुड हैव टेकन अस टू दिस पॉइंट विच इज 374, विच इज गुड अबाउट 60 पॉइंट. और एक लॉट 2000 का है. You can imagine 60 into 2000. You would have earned those many points, right? And आप लोग ये भी EMS भी देख लीजिएगा कि ये कैसे टर्न करती हैं, because I don't have much time to explain. But you can start using Bollinger Bands. It'll give you a much clearer perspective about a trade, whether you should enter or you should exit, or when to enter, when to exit, what should be a stop loss. वो सब आप यहाँ से figure out कर सकते हैं, ठीक है. अब जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा निफ्टी में थोड़ा सा एक रिवर्सल आया है. लेट्स सी निफ्टी अगेन. निफ्टी में थोड़ा सा रिवर्सल आया है एंड निफ्टी इज हेडिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट. लेट मी जस्ट सी इट विद माय ओन सेटअप विच इज 1050 एंड 200 मूविंग एवरेज. नाउ सी हियर MACD क्रॉस ओवर, RSI अभी नीचे ही है तो थोड़ा सा वेट करेंगे फॉर इट टू क्रॉस ओवर एंड अब थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट आना चाहिए. Alright, so good day guys. Analyze your trades, do your trading analysis. Today was extension of Bollinger Bands. Bye bye, see you tomorrow.
My webinar is starting tomorrow. Please, you are free to join. Bye bye.